Hello students, I am Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology in the Department of Pharmacy, RKGIT, Ghaziabad. So in this lecture series, the next lecture is about enzyme induction and enzyme inhibition. So this part is related to drug metabolism. ये जो पार्ट है हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म में आता है जब हम फार्माकोकाइनेटिक के थर्ड स्टेप पे आते हैं, दैट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज एंजाइम इंडक्शन एज एंड एंजाइम इनहिबिशन. द वर्ड एज दिस वर्ड शेज, एंजाइम इंडक्शन मीन्स कि हम किसी एंजाइम की एक्टिविटी को अगर इंक्रीज कर दें, एंजाइम इनहिबिशन मीन्स कि हम किसी एंजाइम की एक्टिविटी को फर्दर अगर डिक्रीज कर पाएँ. द रोल ऑफ एंजाइम्स इन phase 1 and phase 2 metabolism, as we have earlier discuss about this कि phase 1 और phase 2 reactions में हमारे different type के enzymes involve होते हैं. So there are two types of drug metabolizing enzyme. हमारे पास दो टाइप के drug metabolizing enzymes होते हैं. The enzymes that biotransform xenobiotics differ from those that metabolize food material. यानी कि जो enzymes हमारे xenobiotics, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी की, तो xenobiotics यहाँ पे है हमारी ड्रग, यानी कि जो एंजाइम्स हमारी ड्रग को मेटाबोलाइज करने में यूज़ होते हैं वो एंजाइम फूड मटेरियल को मेटाबोलाइज करवाने वाले एंजाइम से थोड़े से अलग होते हैं. सो दे आर वर्सेटाइल एंड नॉन स्पेसिफिक इन मेटाबोलाइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स. ये जो हमारे ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं ये बहुत सारी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. So we have two types of drug metabolizing enzyme, or we can say drug metabolizing enzymes are broadly classified into two categories. First one is the microsomal enzymes and second category is the non-microsomal enzymes. So what is microsomal enzymes and what is non-microsomal enzymes? As जब भी आप metabolic reactions पढ़ेंगे जहाँ पे आप phase 1 और phase 2 reactions पढ़ते हैं, तो जब आप phase 1 और phase 2 reactions पढ़ते हैं, जब drugs की बात आती है तो उस reaction में लिखा हुआ होता है कि the enzyme involved in this phase 1 reaction or this phase 2 reaction is a microsomal enzyme or is a non-microsomal enzyme. So what is microsomal and what is non-microsomal? So what is microsomal enzymes? The microsomal enzymes located on smooth endoplasmic reticulum, primarily in liver, also in kidney, intestine, mucosa and lungs. So microsomal enzymes वो enzyme होते हैं जो कहाँ पे मिलते हैं हमें, smooth endoplasmic reticulum में. So this is the location of microsomal enzymes. Microsomal, microsomes, अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोसोम्स के बारे में पता होगा. तो माइक्रोसोमल एंजाइम्स की प्राइमरी लोकेशन कहाँ है? लोकेटेड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्राइमरीली इन लिवर. जो प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म की वो लिवर होती है, तो यानी कि ये लिवर में जो सेल्स हैं उसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको मिलेंगे. आफ्टर दैट इनकी लोकेशन है किडनी, इंटेस्टाइन, म्यूकोसा एंड लंग्स में. ठीक है. So the monoxygenase, cytochrome P450, UGT, epoxide hydrolase, etc. are microsomal enzymes. So these are the examples of microsomal enzymes. जैसे कि for example जब हम phase 2 reactions पढ़ते हैं तो हमें मिलता है UGT. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं साइटोक्रोम P450. सो दीज आर माइक्रोसोमल एंजाइम्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम. साइटोक्रोम P450 is involved in the phase 1 reaction and UGT involved in the phase 2 reaction. So these are the examples of microsomal enzymes. They catalyze most of the oxidation, reduction, hydrolysis and glucuronide conjugation reaction. So UGT is involved in the glucuronide conjugation and cytochrome P450 is involved in some oxidation, reduction and hydrolytic reaction. Okay. Selectivity towards lipid soluble drug. The selectivity of microsomal enzymes is towards lipid soluble drug. यानी कि microsomal enzymes केवल उन्हीं ड्रग को टारगेट करेंगे जो लिपिड soluble होंगी, बिकॉज ये क्या करते हैं, लिपिड soluble ड्रग को कैसे ड्रग्स में कन्वर्ट करते हैं, वाटर soluble ड्रग्स में, ताकि वो हमारी बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाए. The second type of enzyme is the non-microsomal enzymes. So they are present in the cytoplasm and mitochondria. So the microsomal enzymes and non-microsomal enzyme classified on the basis of their location कि वो कहाँ पे हमें ज़्यादा मिलते हैं. So the non-microsomal enzymes are found in the cytoplasm and माइट्रोकॉन्ड्रिया. ये यहाँ पे हमें मिलेंगे ऑफ हिपैटिक सेल्स, यानी कि ये हमारी लिवर की सेल्स में मिलेंगे, और कुछ जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं फॉर एग्जांपल हमारी किडनी या हमारा प्लाज्मा, वहाँ पे भी ये मिलते हैं. द एग्जांपल्स ऑफ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर एस्टरेजेस, एमाइडेजेस, फ्लेवोप्रोटीन्स, ऑक्सीडेजेस एंड सम एंड मोस्ट कॉन्जुगेट रिएक्शन. जो आपके कॉन्जुगेट रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन को छोड़कर बाकी के जितने भी एंजाइम्स आपके फेज 2 रिएक्शंस में होते हैं वो सारे के सारे आपके
नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। तो यानी कि हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होती है, आपकी ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन को छोड़ के बाकी के जितने भी आपके फेज सेकेंड रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे हमारे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। सो the main important type of a microsomal enzymes is a cytochrome P450 enzyme which involve in oxidation, reduction and some kind of hydrolysis reaction. So cytochrome P450 embedded in the phospholipid bilayer of the endoplasmic reticulum. ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में ये हमें मिलते हैं। The second enzyme NADPA cytochrome P450 oxireductase transfer electron to the CYP यानी कि cytochrome P450 where it can in the presence of oxygen oxidize xenobiotic substrate. So cytochrome P450 NADPH की हेल्प से और एक ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करता है, हमारी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। So oxidative reaction are most commonly carried out by a group of monooxygenase, यानी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है इसलिए हम मोनोऑक्सीजनेस कह रहे हैं इन्हें। इनकी हेल्प से हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट कराए जाते हैं। सो मोर देन 100 cytochrome P450 isoenzymes differing in their affinity for various substrate or drugs have been identified. अभी तक 100 से ज़्यादा साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जिनकी एफिनिटी अलग अलग टाइप की ड्रग्स के लिए होती है। यानी फॉर एग्जांपल हमने 3 ड्रग ली, ड्रग ए, ड्रग बी एंड ड्रग सी। ये तीनों ड्रग जो हैं वो फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज होने वाली हैं। तो उस फेज़ 1 रिएक्शन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में उनको मेटाबोलाइज कौन से एंजाइम करेंगे, हमारे साइटोक्रोम P450। So they belong to a group of enzyme which have similar core structure and modes of operation. तो साइटोक्रोम P450 हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा 100 डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम P450 होते हैं, बट इनका कोर स्ट्रक्चर यानी कि जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। यहाँ पे P450 वर्ड का क्या मतलब है, द टर्म P450 इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेक्ट्रोमेट्रिक पीक ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम एज 450 नैनोमीटर। इसकी जब हम आपकी वेवलेंथ चेक करते हैं तो इसकी जो हाईएस्ट पीक आती है वो आती है आपकी 450 नैनोमीटर पे, इसलिए इस एंजाइम में ऐड हो गया है P450, ठीक है, इसलिए इसका नाम है P450, साइटोक्रोम P450। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर अमाइनो एसिड सीक्वेंस होमोलॉजी। तो हमने स्टार्टिंग में बोला कि हमारे पास 100 से ज़्यादा एंजाइम्स है, तो इनको हमने कैसे क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस की होमोलॉजी के ऊपर, यानी कि जो इनके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग वो कितनी मिलती जुलती है उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज CYP मेन फैमिली, ये आपकी CYP मेन फैमिली है। सो 40% अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर इज कॉमन अगर दो साइटोक्रोम P450 एंजाइम का, फॉर एग्जांपल ये आपका पहला एंजाइम है और ये आपका दूसरा एंजाइम है, अगर इन दोनों एंजाइम का 40% अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो आपके साइटोक्रोम एंजाइम हैं ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद 70 CYP फैमिली हमारे पास हैं इसके अकॉर्डिंग, और 17 जो CYP फैमिली हैं वो ह्यूमंस में मिल चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों एक ही CYP फैमिली के हैं तो इसको हमने नाम दे दिया CYP1 CYP1, यानी कि इन दोनों की 40% अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग सिमिलर थी, इसलिए इनको हमने नाम दे दिया CYP1 और CYP1। आफ्टर दैट इनको हम क्लासीफाई करते हैं सब फैमिली के अंडर में, ठीक है। अब जो आपकी CYP1 फैमिली में फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके एंजाइम्स आ गए, इन एंजाइम्स में से जिन एंजाइम्स की 55% अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग मैच करती है उन सब एंजाइम्स को हम लोग सेम सब फैमिली में रखते हैं। फॉर एग्जांपल उनको हम किस में डिवाइड कर देंगे, CYP1A, CYP1B, ठीक है। ये हम किस बेसिस पे करते हैं, जिन अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग यानी कि 55% होमोलॉजी जो होती है वो मैच करती है, उसके बेसिस पे हम इनको सब फैमिली में और उसके बाद इनको हम आइसो फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिलीज एंड सब फैमिली ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम। नाउ मेन टॉपिक इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन, यानी कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं इनका इंडक्शन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। सो द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द एंजाइम बाय सेवरल ड्रग्स एंड केमिकल्स इज नोन एज अ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। यानी कि अगर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ खाएं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट माइक्रोसोमल एंजाइम की
मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी को बढ़ा दें, यानी कि आपके बॉडी में माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट था, साइटोक्रोम P450, वो किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करता था। आपने कोई दवाई खाई जिसने उस एंजाइम की एबिलिटी को इन्हेंस कर दिया किसी पर्टिकुलर ड्रग को मेटाबोलाइज करने की, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। सो द मोस्ट एंजाइम इंड्यूसर्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर कोई भी ड्रग माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर का काम कर रही है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? दे आर लाइपोफिलिक कंपाउंड, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एंजाइम की एफिनिटी किसके लिए होती है, अगर कोई ड्रग लाइपोफिलिक होगी तभी वो हमारे एंजाइम जो है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो यानी अगर आपकी कोई ड्रग किसी माइक्रोसोमल एंजाइम के इंड्यूसर का काम कर रही है, यानी कि उसकी ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी को बढ़ाती है, तो दिस ड्रग शुड बी लाइपोफिलिक, ये ड्रग भी लाइपोफिलिक होनी चाहिए। दे आर सबस्ट्रेट फॉर द इंड्यूस्ड एंजाइम सबस्टेंस, यानी कि ये ड्रग भी उस एंजाइम के थ्रू ही मेटाबोलाइज होंगी, ये उसके सबस्ट्रेट का काम करेंगी। दे हैव लॉन्ग एलिमिनेशन हाफ लाइफ, इन ड्रग की हाफ लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है, इनकी लॉन्ग एलिमिनेशन हाफ लाइफ होती है। So different inducers are relatively selective for certain cytochrome P450 enzymes families. अब जो हमारे पास अलग अलग टाइप की इंड्यूसर्स ड्रग होती हैं उनकी एफिनिटी अलग अलग टाइप के साइटोक्रोम P450 एंजाइम के लिए होती है, और जो अलग अलग टाइप की साइटोक्रोम P450 फैमिलीज होती हैं वो फर्दर कुछ अलग ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक ड्रग के एग्जाम्पल लेते हैं फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन हमारी एक ड्रग है जो कि किस एंजाइम को इंड्यूस कर रही है? CYP3A एंड CYP2B1। इन दोनों एंजाइम की मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी को फिनोबार्बिटोन इंक्रीज कर देता है, यानी कि अगर CYP3A पहले केवल एक ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहा था, एक मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज कर रहा था, फिनोबार्बिटोन अगर आप खाते हैं तो वो इसको इंड्यूस कर देगी और अब CYP3A एक की जगह 4 ड्रग्स के मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज करेगा। सो CYP3A एंड CYP2B1 जो हैं ये लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि अगर आपने फिनोबार्बिटोन खाया है और उसके साथ में आप कोई दूसरी ड्रग खा रहे हैं जो कि CYP3A की हेल्प से मेटाबोलाइज होती थी, तो अब वो ड्रग आपकी बॉडी में बहुत कम देर के लिए रहेगी, क्योंकि फिनोबार्बिटोन CYP3A को इंड्यूस कर देगा और CYP3A उस दूसरी ड्रग को बहुत जल्दी मेटाबोलाइज करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा। सो दिस इज नोन एज एंजाइम इंडक्शन। The third example is polycyclic hydrocarbons. Polycyclic hydrocarbons will induce CYP1A enzyme and CYP1A enzyme involved in a metabolism of few drugs. ये जो आपकी बहुत कम ड्रग्स होती हैं उनके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल थियोफाइलिन। तो अगर आपने पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लिए हैं और थियोफाइलिन भी आपने साथ में खाया हुआ है, तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या करेंगे? CYP1A की मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिससे थियोफाइलिन जो ड्रग है ये आपकी बॉडी से बहुत जल्दी मेटाबोलाइट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सो दिस इज एंजाइम इंडक्शन। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन, यानी कि अगर आप कोई 2 ड्रग ले रहे हैं जिसमें से एक ड्रग किसी एंजाइम को इंड्यूस कर रही है जिसकी वजह से वो एंजाइम दूसरी ड्रग को बहुत जल्दी मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो इससे आपको क्या क्या इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं? पहला, डिक्रीज इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल किसी विमेन ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ली है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए और उस टाइम पे उसने कोई दूसरी ड्रग भी खाई हुई है साथ में, और वो दूसरी ड्रग उस एंजाइम को इंड्यूस कर दे जो इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को मेटाबोलाइज करती थी, तो क्या होगा? जो आपकी ड्रग ने जिस एंजाइम को इंड्यूस किया है वो इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को बहुत जल्दी मेटाबोलाइज करके उस विमेन की बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देगी, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? लाइपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है। तो अगर आपकी ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई यानी कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट हो जाएगा। द सेकेंड case is increased intensity of action of drug that are activated by metabolism. So the second motive of metabolism is to convert a inactive drug into the active form. कुछ drugs ऐसी होती हैं कि वो parent form में inactive होती हैं और मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो अगर हम उनके मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम की एबिलिटी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? उन ड्रग की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी उनका काम करने की इंटेंसिटी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ड्रग रैपिडली मेटाबोलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। आफ्टर दैट वी हैव टॉलरेंस। सो इफ द ड्रग इंड्यूस इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल ऑटो इंडक्शन, तो इस केस में ये ड्रग टॉलरेंस क्रिएट करेगी।
अगर हम दो ड्रग्स ऐसी लेते हैं जिनमें से एक ड्रग दूसरी ड्रग के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की एबिलिटी को इन्हांस कर रही है, तो इन दोनों ड्रग की डोज एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल, पहले आप 50 mg ड्रग लेते थे और 50 mg ड्रग आपको 4 घंटे के लिए इफेक्ट देती थी। अब आपने 50 mg ड्रग ली और उसके साथ कोई दूसरी ऐसी ड्रग ले ली जो आपकी 50 mg ड्रग के मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम की एबिलिटी को बढ़ा रही है, तो अब वो 50 mg ड्रग 4 घंटे की जगह आपको केवल 2 घंटे इफेक्ट देगी, क्योंकि वो मेटाबोलाइज फास्ट होगी तो एक्सक्रीट आउट जल्दी हो जाएगी। तो इस केस में हमें डोज को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। The next factor is enzyme inhibition, ठीक है। So a decrease in the drug metabolizing ability of an enzyme is called enzyme inhibition। तो जैसे इंडक्शन में हमने पढ़ा कि कुछ ड्रग्स कुछ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की एबिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं, ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ एंजाइम विच मेटाबोलाइजेज ड्रग बी, ठीक है, और इसी के साथ में आपने ले ली है ड्रग ए। ड्रग ए विल डिक्रीज द मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ दिस एंजाइम। सो फॉर एग्जाम्पल, पहले ये एंजाइम आपकी ड्रग बी को 4 घंटे में मेटाबोलाइज करके आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देता था। अब अगर आप ड्रग ए के साथ में ड्रग बी को लेते हैं तो ड्रग ए इस एंजाइम की मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी को डिक्रीज करवा रही है, यानी कि अब आपकी जो ड्रग है वो 4 घंटे के कंपैरेटिवली में भी 8 घंटे में आपकी बॉडी से मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो, यानी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने एंजाइम इंडक्शन में देखा, ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पे उसका रिवर्स काम होगा। सो वन ड्रग कैन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर इफ इट यूटिलाइजेज द सेम एंजाइम और कोफैक्टर। दो ड्रग्स जो होती हैं वो compete अगर कर लेती हैं किसी सेम एंजाइम के लिए, यानी यहाँ पे ड्रग ए और ड्रग बी दोनों ही इसी एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, तो इनमें से जिस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो ड्रग इस एंजाइम को यूटिलाइज करेगी और दूसरी ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं होने देगी, जिसकी वजह से इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा और इसी को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। So there are two types of enzyme inhibition: direct inhibition of enzyme and indirect inhibition of enzyme. So what is direct inhibition of enzyme? Direct inhibition of enzyme may result from interaction at the enzymatic site, the net outcome being a change in the enzymatic activity. यानी कि for example, this is an enzyme, this is drug A and this is drug B. Drug A and drug B will bind at the same enzymatic site for the metabolism. So जिस भी ड्रग की एफिनिटी ज़्यादा होगी या जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, इस साइट पे आके बाइंड करेगा और दूसरी ड्रग को इस एंजाइमेटिक साइट पे बाइंड नहीं करने देगा, यानी कि हमारी ड्रग ए ड्रग बी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है और इस एंजाइम की मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ड्रग बी के लिए रिड्यूस हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनहिबिशन। So the direct enzyme inhibition is classified into two parts: competitive inhibition, non-competitive inhibition and product inhibition. So what is competitive inhibition? When structurally similar compound compete for the same site on the enzyme. यानी कि जब दो structurally similar compound किसी enzyme की same site के लिए compete करते हैं। For example, यहाँ पे हम example दिया है methacholine inhibit metabolism of acetylcholine for competing with it for choline esterase। जैसे हमें पता है कि जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है, कोलिन एस्टरेज एंजाइम का क्या काम होता है, एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करना, ठीक है। सो अब क्या है यहाँ पे, मेथाकोलिन और एसिटाइल कोलिन दोनों सेम कैटेगरी की ड्रग हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, इसी की वजह से ये सेम एंजाइम को यूज करती है मेटाबोलाइज होने के लिए। एंजाइम कौन सा है, कोलिन एस्टरेज। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एंजाइम कोलिन एस्टरेज, दिस इज एसिटाइल कोलिन, this is methacholine. Okay, so this is acetylcholine and this is methacholine. These drugs will compete for the same site for binding with this enzyme. ये दोनों ड्रग compete कर रही हैं क्योंकि ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम की सेम साइट पे बाइंड होती है मेटाबोलाइज होने के लिए। तो इस केस में क्या होता है, मेथाकोलाइन इस साइट पे आके बाइंड हो जाती है और मेटाबोलाइज होना स्टार्ट कर देती है और एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को इनहिबिट कर देती है इस साइट पे, यानी कि एसिटाइल कोलिन अब इस साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड, यानी कि इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है और ये किसी एंजाइम की सेम ही साइट पे आके बाइंड करती हैं, और अगर मेथाकोलिन इस साइट पे आके बाइंड करता है तो वो एसिटाइल कोलिन को इस साइट पे बाइंड नहीं होने देता और इसकी
मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है. सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बिकॉज दीज टू ड्रग्स विल compete with each other for metabolism. This is non-competitive inhibition when a structurally unrelated agent, यहाँ पे दो ड्रग compete कर रही हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, interact with the enzyme and prevent the metabolism of drug. यहाँ पे दो ड्रग जो होती हैं वो एंजाइम्स के लिए compete करती हैं, but these are not structurally similar compound. ये structurally similar compound नहीं है. इस टाइप के इनहिबिशन को हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. फॉर एग्जाम्पल isoniazid inhibit the metabolism of phenytoin by the same mechanism. Phenytoin is a anticonvulsant drug और आइसोनियाजिड क्या करता है, इनहिबिट करता है फेनेटोइन के मेटाबॉलिज्म को और इसको मेटाबोलाइज नहीं होने देता अगर ये दोनों ड्रग आप साथ में लेते हैं. आइसोनियाजिड के साथ में अगर आप फेनेटोइन ले रहे हैं तो फेनेटोइन आपकी बॉडी में बहुत देर तक रहेगा क्योंकि आइसोनियाजिड उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो कि फेनेटोइन को मेटाबोलाइज कर रहा था. सो ये दोनों ड्रग आपकी अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है पर ये एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं. The third type of direct inhibition is the product inhibition when the metabolic product compete with the substrate for the same enzyme. अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट सेम एंजाइमेटिक साइट के लिए compete करे अपनी ही पेरेंट ड्रग के साथ में, तो उस फैक्टर को हम बोलते हैं प्रोडक्ट इनहिबिशन. फॉर एग्जांपल जो आपकी माओ इनहिबिटर्स ड्रग होती हैं वो इस टाइप की एंजाइम इनहिबिशन को शो करती हैं, यानी कि ड्रग का प्रोडक्ट अपनी ही ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. Next type of indirect inhibition is indirect inhibition. There's two type of indirect inhibition. First one is the repression and second is the altered physiology of the body. So what is repression? Decrease in enzyme content. किसी वजह से अगर हमारी बॉडी में एंजाइम कंटेंट कम हो जाए यानी एंजाइम की सिंथेसिस कम होने लग जाए. फॉर एग्जांपल ड्यू टू अ फेल इन द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एंजाइम के सिंथेसिस होने के रेट को कम कर देती हैं. अब अगर आपकी बॉडी में एंजाइम सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी चीज़ को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेशन बिकॉज ऑफ द राइज इन द रेट ऑफ एंजाइम डिग्रेडेशन. और दूसरा केस कब हो सकता है, किसी भी चीज़ का हमारी बॉडी में लेवल कम कम होगा, या तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाए या तो उसका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाए. इन दोनों केसेस में ही उस ड्रग का या उस एंजाइम का लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स जो कि किसी भी एंजाइम के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं? एथियोनिन एंड एक्टिनोमाइसिन डी. एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग जो कि किसी भी एंजाइम के डिग्रेडेशन को इंक्रीज कर देते हैं? एग्जाम्पल हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड डाइसल्फिराम. डाइसल्फिराम जो होती है वो अल्कोहल कंजप्शन को कम करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो दीज ड्रग्स विल इनहिबिट द इंक्रीज द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि ये ड्रग क्या करती हैं, उस एंजाइम के डिग्रेडेशन के रेट को बढ़ा देती हैं जो एंजाइम फर्दर किसी दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता. सो दिस इज नोन एज रिप्रेशन और इनडायरेक्ट इनहिबिशन. Next is altered physiology. So due to any kind of nutritional deficiency और hormonal imbalance, अगर हमारी बॉडी में किसी एंजाइम का लेवल कम हो जाता है तो उस एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस इज इनडायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ ड्रग. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ड्रग्स हैं कि इनडायरेक्टली उस एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं जो एंजाइम किसी दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता. So these are the examples of enzyme inhibition. These are the inhibitor drug. For example, MAO inhibitors. ये किसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगी? बार्बिचुरेट्स एंड टायरामिन. After that we have coumarins. Coumarins will affect the inhibit the enzyme which is involved in the metabolism of phenytoin. Allopurinol is involved in affect the metabolism of 6-mercaptopurine. So these are the examples of enzyme inhibitors which will affect these drugs. ये इन ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे. These are the inhibitors drugs and this is the drugs with decreased metabolism. यानी कि अगर आप माओ इनहिबिटर्स को बार्बिचुरेट्स के साथ में लेते हैं तो माओ इनहिबिटर्स जो होंगे वो बार्बिचुरेट्स के मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे. अगर आप माओ इनहिबिटर्स के साथ में बार्बिचुरेट्स लेते हैं तो बार्बिचुरेट्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, ये मेटाबोलाइज नहीं होगी. और अगर ये मेटाबोलाइज नहीं होती है तो ये ईजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी नहीं होगी. So this is all about enzyme induction and enzyme inhibition. These are the references. Thank you.